प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कलाम पढ़ने से पहले एक छोटा सा कोरस गाएंगे और खुदावंद की बरकत हासिल करेंगे। जिला बाप बेटे रुक दे सको
دوں گا بھائی طارق جاوید کو کہ وہ آئے اور آج کے کلام سے ہمیں سرشار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اسپیکر کو بھی بلائیں گے، بھائی زاہد شریف۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے ایوب نبی کی کتاب 38 باب، اس کی 6 آیت سے 15ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کون سی چیز پر اس کی بنیادیں دھری گئیں، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر رکھا؟ جس وقت صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے فرزند خوشی سے للکارتے تھے، کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا؟ جس وقت کہ وہ گویا رحم سے نکل کر ٹوٹ پڑا، تب میں نے بادلوں کا اس کا لباس اور تاریکی کو لپیٹنے کا کپڑا بنایا، اور اس کے لیے میں نے اپنی حدیں باندھی اور اسے اڑنگے لگائے اور دروازے لگائے، اور کہا یہاں تک تو آئے گا اور آگے نہ بڑھے گا، اور یہاں تیری موجوں کا زور ٹوٹے گا۔ کیا تو نے اپنے ایام میں صبح پر حکم کیا ہے، یا فجر کو اس کی جگہ بتائی ہے کہ وہ زمین کے کناروں کو پکڑ لے اور شریر وہاں سے رگیدے جائیں؟ وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی، اور گویا لباس پہنے ہوئے نمایاں ہو جاتی ہے، اور شریروں سے ان کی روشنی لے لی جائے گی، اور بڑھایا ہوا بازو توڑ دیا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قدوس قدوس مہربان لشکروں کے رب جلال کے بادشاہ، تیرا شکر ہو خداوند کہ تو ہمیں پیار کرتا ہے، تیری محبت عجیب اور جلالی ہے خداوند۔ خدا باپ، آج تیرے اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیری کلام میں سے سیکھ سکیں۔ تیرے بیٹے زاہد شریف کو خداوند تیرے مصباح پر لاتا ہوں، ہاتھ بڑھا کر خداوند چھو لے، تیرا آسمان کھل جائے اور پاک روح کی آگ شعلوں کی مانند خداوند اس جگہ پر اتر آئے، یہ ساری جگہ خداوند تیرے پاک مسح سے بھر جائے، تیرا عبر ہمیں گھیر لے خداوند، تیرے پاک روح کی آگ کے شعلے یہاں پر برسنے شروع ہو جائیں خداوند۔ تیرے بیٹے کو تیرے مصباح پر لاتا ہوں، ہاتھ بڑھا کر خداوند اسے چھو لے، اسے برکت دے، اسے اپنے پاک روح کی آگ سے بھر دے خداوند۔ تیرے کلام میں لکھا ہے تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ خداوند تو آج اپنے بیٹے کو بڑی برکت دے، تاکہ تیرا کلام جو آج تو نے ہمارے لیے رکھا ہے، وہ کلام خداوند تیرا بیٹا بڑے ہی اچھے طریقے سے خداوند ہمیں ہمارے سامنے پیش کر سکے۔ اور خداوند جتنے بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، خداوند جو گھروں میں ہیں، جو حاضر جماعت یہاں پر موجود ہے، ایک ایک جان بدن اور روح کو چھو، تاکہ خداوند تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے، اور ہم کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ خداوند یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، سب سے پہلے کیتھولک کیرسمیٹک کلب اعظم بستی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایام میں بھی، جو کہ وبائی ایام بھی کہلاتے ہیں، اپنی خدمات کو جاری و ساری رکھیں گے، اور خداوند ان کے وسیلہ سے ہر گھر میں اپنی
अपना पैगाम पहुंचा रहा है। इसके वसीले खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत से माला माल करे। अजीज मोमिनीन, आज जैसा लिखा है फजर दे बेले, इसको बयान करने से पहले जब तो तेनों कुछ नहीं लबना, जब तो तेनों कुछ नहीं लबना, सोना इत्थे भुल जावेगा। उठ जा हुण भी रब नूं सजदा कर ले, उठ जा हुण भी रब नूं सजदा कर ले, काफिर मरिया रुल जावेगा। अज़ीज़ मोमिनीन, खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया? अगर हम तकवीन की किताब का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया। खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को खल्क कर रहे थे तो ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और सबसे पहला काम उसने तारीकी और रोशनी को एक दूसरे से जुदा किया, ताकि जब रोशनी हो तो खुदा का जलाल नजर आए, उसकी कारागरी नजर आए, उसके दी हुई नेमतें हमें नजर आए। और ऐसा ही हुआ। सबसे पहले काबिल गौर बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि फजर क्या है। फजर अरबी लफ्ज, अरबी में फजर को शजर भी कहते हैं, जिसके मायने है फूफटना, सुबह की रोशनी और रात की तारीकी को फाड़ कर निकलती है, तारीकी को फाड़ कर निकलती है और उजाले में आती है। और सबसे पहला काम भी खुदा ने तारीकी को और रोशनी को एक दूसरे से जुदा किया, फाड़ दिया, ताकि खुदा की रोशनी हमें नजर आए। और उसके बाद खुदा अपने हाथ के कामों को हम पर आया करता है कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि उसने कायनात को क्या किया? खल्क किया। और इसी तरह अगर आज की हमने तलावत पढ़ी है तो उसमें लिखा है, अय्यूब नबी की किताब जो मुझसे पहले भाई ने पढ़ी, कि पानी भी ललकारता रहा है कि मुझे खुदा ने बनाया है। परिंदे भी चहचहा रहे हैं फजर के वेले कि हमें खुदा ने बनाया है। फजर का वेला वो वेला होता है जब खुदा अपनी बरकत हम पर नाजिल करता है, जब खुदा हमें भर देता है, जब खुदा अपनी शफ़क़त हम पर नाजिल करता है। फजर का वेला वो वेला कहलाता है। अगर हम इसी तरह तकवीन की किताब का अगर मुतालिया करते हैं तो सबसे पहला वादा इब्राहिम से वादा किया कि तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अगर हम कलाम मुकद्दस पढ़े, घरों में अपने तकवीन की किताब पढ़े, तो उसमें लिखा है कि रात को इब्राहिम रोया देख रहा था कि मैं तो बे औलाद हूँ, मेरी उम्र भी ज़्यादा है, मेरे कोई वारिस भी नहीं है। इसी तरह वो रात को रोया देखता रहा और खुदा ने जब सुबह होने लगी तो सुबह फूफटते वक्त उसे उठाया, बेदार किया और कहा आसमान पे देख, सितारे चमक रहे हैं। अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसे ही होगी। सुबह के वक्त उसे क्या किया? प्रॉमिस किया, उसके साथ वादा किया। अगर इसी तरह अगर हम तकवीन की किताब का मुतालिया करें तो याकूब भी जब रोया देखता है आसमान से चिड़ी को,
वो भी रोया में, और जब सुबह उठता है तो खुदा का शुक्र अदा करता है, कहता है खुदा अगर तू मुझे रोटी और पानी देता रहे तो मैं तेरा शुक्र पूजा करता रहूँगा और 10वां हिस्सा तुझे देता रहूँगा। और इसी तरह अगर तकवीन की किताब उसके 32वें बाब में 32वें बाब की 22वीं आयत से अगर हम मुताला करें कि फरिश्ता और याकूब आपस में जब कुश्ती करते हैं, कुश्ती लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पूरी रात याकूब उसके साथ क्या करता है, लड़ता है। जब उसके साथ लड़ता रहता है तो जब सुबह का फटने का टाइम होता है, फजर का वक्त होता है, तो वो जो लड़ रहा होता है याकूब से कहते हैं मुझे जाने दे, फजर का वक्त हो गया है, मुझे जाने दे। और जब उसके रान को झूलता है और वो सुकड़ जाती है और फिर वो उसे पकड़ता है, कहता है नहीं, मैं सारी रात से कुश्ती करता रहा हूँ, अब तो मुझे बरकत दे के जा, तो मुझे कोई आम बंदा नहीं लगता, तो उससे मैं बरकत दूंगा। और फिर उसे पूछता है तेरा नाम क्या है, और पर खुदा का फरिश्ता जब उसे कहता है कि आज से तू याकूब नहीं इसराइल होगा, और फिर उसे बरकत दी के जाता है कि खुदा तुझे बरकत देता है, और उसे बरकत मिलती है सुबह के वक्त, फजर के वक्त उसे क्या मिलती है, बरकत मिलती है। इसी तरह आगे बढ़ते जाए तो बहुत सारी मिसालें हमारे दरमियान आती है, और बरकत का मंबा फजर खुद। हम अंजील नबी मुकद्दस लूका की अंजील का अगर हम मुताला करें और उसकी 78वीं आयत में 78वीं आयत में पहला बाब उसकी 78वीं आयत, तो इसमें लिखा है हमारे खुदा की उस ऐन रहमत की वजह से जिसके साथ आलमी वाला की फजर हम पर आएगी, ताकि उन्हें रोशनी बख्शे जो तारीकी और मौत के साए में बैठे हैं, और हमारे कदमों की सलामती की राह में हदायत करे। खुदावन यीशु मसीह हकीकी मायनों में फजर है, जिसके रोशनी से हम दिखते हैं, जिसकी बरकत से हम पाते हैं, और जिसके वसीले हम जिंदगी रखते हैं। यीशु मसीह के क़याम में जब लोग सारे नाउम्मीद हो गए थे, उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही फरिश्ते ने ये हम पर जाहिर कर दिया था कि वही हकीकी फजर है, आलमी वाला। कुंजियाँ उसके हाथ में है, सारा इख्तियार उसके पास है, वही रिहाई देगा, वही हमारे लिए रोशनी है, जो तारीकी को चीर कर हमें हकीकी आंखें देगा कि हम खुदा की बरकत को महसूस करें, उसकी बरकत से हासिल करें, और खुदा हमें वही हकीकी आंखें अता करता है। और खुदा मन यीशु मसीह हमें अपनी बरकत से नवाजता और माला माल करता है। आलमी वाला की फजर यीशु मसीह को कहा गया। आज भी जब हम बेदीनी के दौर में और वबाई दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, तो हमारी फजर, हमारी उम्मीद, आलमी वाला की फजर, रोशनी बख्शने वाली, जिंदगी देने वाली यीशु मसीह। हमारा ईमान होना चाहिए कि वो तारीकी को नीस्त कर देगा और हमें रोशनी देगा, हमें असरे नौ हमें फिर से बहाल करेगा, इस वबा को हमसे दूर करेगा। इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं कि जब भी हमेशा फजर के वेले की
खुशखबरी मिलती है। महसूस करें कि खुदावंद यीशु मसीह जब दफनाए गए और डर के मारे शागिर्द भी जो है थरथराते हुए बैठे हैं, तो तड़के फजर के वक्त, सुबह के वक्त मरियम मजदली तैयारी के साथ यीशु मसीह की कब्र पे आती है और सुबह के वक्त उसे खुशखबरी मिलती है, बीबी जिसे तू ढूंढ रही है वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। आलमे बाला की फजर जिंदा हो गई है, हम पर तुलू हुई है। और फिर वो खुशखबरी लेके दौड़ी शागिर्दों के पास जाती है, कहती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। अगर इससे पहले का वाकया भी देखें तो पतरस सारी रात, जब हनूज यीशु से नहीं मिला था, सारी रात जो है मछली का शिकार करता है और सुबह के वक्त किनारे पर जाल धो रहा है और उसके शरीक भी वहां पर जालों की मरम्मत अपने वालिद के साथ कर रहे हैं। और यीशु मसीह लोगों को तालीम दे रहा है। फिर उससे दरख्वास्त करता है, मुझे जो है कश्ती पे आने दे ताकि मैं इन्हें तालीम दूं, और तू थोड़ा सा इसको किनारे से हटा। और फिर यीशु मसीह तालीम देता है और तालीम देने के बाद उसे कहता है कि चलो शिकार। कहते हैं उस्ताद मैं तो नाउमीद हूँ, मुझे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, सारी रात मेहनत कर करके थक गया हूँ। और फिर यीशु के कहने पे कहता है, अच्छा अगर आप मुझसे कहते हो तो मैं दोबारा जाल डालता हूँ। और उसी फजर उसे क्या हो गया, मछलियाँ मिल गई, बहुत सारी मछलियाँ मिल गई जो संभाली नहीं जा रही थी। और शरीकों को भी बुलाया गया कि आप आए और हमारी मदद करें, और दोनों कश्तियाँ भर गई। और उसी सुबह पतरस से कहा गया, एक वादा किया गया पतरस के साथ कि तो अब से माहिर नहीं बल्कि आदमगीर। उसी सुबह उसे ये वादा किया गया कि तो आदमगीर बनेगा, तो खुदावंद के लोगों को उसके पास लाएगा। तो उससे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि मरियम मजदली कब्र पे आई और खुशखबरी देने के लिए शागिर्दों के पास गई। और उसके आगे देखें कि जब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्द डर रहे हैं और शागिर्दों को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। और फिर भी यीशु मसीह उनकी उम्मीद जो है वो फिर से जाहिर होती है कि फिर शागिर्द जब डर के मारे हैं और पतरस उनसे कहता है कि भाई मैं तो अभी मछली के शिकार के लिए जा रहा हूँ, और शागिर्द कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं। और ये वाकया लिखा है अंजील नबीस मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब अगर हम पढ़े, इस 21वें बाब का मुतालिया करें तो इसमें लिखा है कि वो शिकार के लिए जाता है और सारी रात दोबारा से उसे कुछ नहीं मिलता। शागिर्द उसके साथ है, दोबारा कुछ नहीं पाते। जब सुबह होती है और किनारे पर आते हैं और एक अजीब सा वाकया उन्हें एक मंजर नजर आता है। एक
एक मंजर नजर आता है कि यीशु मसीह किनारे पे सुबह सुबह किनारे पे मछली भून रहे हैं और शागिर्द देख के हैरान हो जाते हैं कि हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर इसके पास तो मछली है और सुबह इसने मछली कहाँ से पकड़ी होगी। सोच विचार में दिल में वो सोच रहे होंगे और फिर उनसे कहता है आओ नौजवानों नाश्ता कर लो। यीशु को उनकी फिक्र थी कि सारी रात मेहनत की है, कुछ हासिल नहीं किया। फजर के वेले यीशु मसीह उनको खुशखबरी देता है कि आओ नाश्ता करो, तुम लोग भूखे और प्यासे आओ, इधर आओ। तसल्ली मिलती है, सुबह बरकत मिलती है। नाश्ते के बाद जो है फौरन बाद अगर हम इसी चैप्टर का मुतालिया घरों में करते रहे, यूहन्ना की इंजील इसका 21वां बाब, इस वाक़े के बाद एक और इनाम मिल जाता है। सुबह जैसे उस वक्त पतरस से कहा गया कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, और यहाँ पर एक और जो फजर दे वेले सुबह नाश्ता कराने के बाद यीशु मसीह ने उन्हें एक और तोहफा दे दिया, और वो ये तोहफा था कि मुकद्दस पतरस को अमामत मिली 15वीं आयत से। और जब वो नाश्ता कर चुके थे, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयूना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुसलसल यीशु मसीह से पूछता रहा, और तीनों बार यीशु मसीह उन्हें 3 बार बरकत देते रहे, अमामत देते रहे कि तो कैफा है, मैं तुझ पे जो है अपनी कलीसिया तामीर करूँगा, तू भेड़े चरा, तू बल्ले चरा। इसी तरह ये हम इसका मुतालिया घर पे करें तो हमें सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगी। यही फजर का वेला है जब बरकत मिलती है। याकूब को बरकत मिली, इब्राहिम को बरकत मिली, और यहाँ पर नए अहदनामे में खुदावंद किसी बरकत दे रहा है सुबह के वक्त। पहले आदमगीर और अब अमामत, कि तुझ पर अपनी कलीसिया तामीर करूँगा। मेरी भेड़े चरा, मेरे बर्रे चरा, मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर। ये फजर के वेले की ब्लेसिंग है। सारी रात काम करते रहे दिल लगा के, कुछ नहीं हासिल हुआ, खुदा ने सुबह उनके दुख और दर्द को महसूस किया, और फिर उसी शागिर्द को दोबारा बरकत मिली, अमामत मिली। इसी तरह हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, तकरीबन 6 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं कि हम जो है बड़े मसले मसाइल में घिरे हुए हैं, मगर उम्मीद रखें कि खुदा हमें सुबह के वक्त खुशखबरी ज़रूर देगा कि बेटा आप लोग घबराओ नहीं, ये वबा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मैं फजर के वेले आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ। आलमी बाला की फजर यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ, आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं बरकत देता हूँ, मैं बरकत वाला खुदा हूँ, मैं बचाने वाला खुदा हूँ। और हमें भी जो है वो खुदावंद जो है मुकद्दस पतरस की तरह बरकत देता है। और इसी तरह अगर हम देखें आगे चलते हुए कि खुदावंद हमेशा जो है फजर के वेले ही बरकतों से माला माल करता है, ताकि हम उसमें बसे और बहुत सारा फल लाएं। बशर्त ये है कि हम अपने फजर को, अपनी आलमी बाला की फजर को खुदा यीशु मसीह को महसूस करें कि वही हमें बरकत देगा, वही हमें हमारे दुखों से दिखाई देगा, वही हमारे दुख को महसूस करेगा। क्योंकि सुबह का वेला
वही बेला है जब भी बरकत मिलती है। इसलिए हम पर वाजिब है, खुदा यीशु मसीह जब अपने बाप से दुआ करते थे तो वो सुबह के वक्त पहाड़ पे जाके दुआ करते थे। अगर हमें भी अपनी फजर के वेले बरकत हासिल करनी है तो उसके लिए वाजिब है कि हम सुते ना रहिए, जागते ते होश च रहिए, ताकि असी खुदा यीशु मसीह जड़ फजर है असी उदो बरकत हासिल करिए। पर शर्त यही है कि हमने सुबह सरगी फजर के वेले उठना है, ताकि खुदावन हमें अपनी बरकत से माला माल करे, हमें अपनी खुशनुदी दे। जिस तरह खुदावन सुबह सुबह कितनी प्यारी हवा भेजता है, ठंडी ठंडी हवा जो हमारे नथनों को जो है वो अंदर लेती है और हमें ताज़ा दम करती है। खुदा सुबह सुबह शबनम ओस नाज़िल करता है, ताकि उस पे जब हमारे कदम पड़े तो हमारे पाँव को ताज़गी मिले। खुदा उन सुबह सुबह परिंदों को हुक्म करता है कि वो अपनी आवाज़ों से, अपनी खूबसूरत आवाज़ों से हमें बेदार करें। मेरी छोटी बच्ची है, जब मैं सुबह इस कॉलेज के लिए जाता हूँ और मैं उसे जब उठाता हूँ तो बड़ी शफ़क़त से, बड़े प्यार से उठाता हूँ। जब मैं इंसान होने के नाते अपने बच्ची को बड़ी शफ़क़त से, प्यार से उठाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इस तरह खुदा भी हमें शफ़क़त से, प्यार से बेदार करता है कि उठो, मेरी हमद सराई करो, मुझे धन्यवाद कहो, ताकि मैं अपनी बरकत से तुम्हें माला माल कर दूँ। अगर हमें बरकत हासिल करनी है तो शर्त यही है कि फजर के वेले खुदा बाहें फैलाए खड़ा है, ताकि हमें भर दे, हमारे पूरे दिन को वो बड़ा अच्छा करे। जब हम फजर के वेले सुबह उठते हैं, उससे दुआ करते हैं, या अगर कहीं पे आजकल तो नहीं, कोरोना से पहले पाकमास होती है सुबह 6 बजे, जब हम उसमें शिरकत करते हैं तो हमारा शख्सी तजुर्बा ये है कि जब पाकमास या दुआ के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सारा दिन बहुत रूह को एक तस्कीन मिलती है, रूह को एक तस्कीन मिलती है। अगर हम तस्कीन लेना चाहते हैं, सारा दिन अच्छा गुजारना चाहते हैं, हम कोरोना से, इस वबा से महफूज रहना चाहते हैं, तो शर्त वही फजर के वेले अपने खुदावन को पुकारें, उसकी हमसराई करें, उसे बरकत और फज़ाइल हासिल करें। खुदावन मुझे और आपको फजर के वेले उठकर खुदा बाप की मदद सराई करने की और उसे बरकत और फज़ाइल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रिया जाहिद भाई, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ फजर के बेटे का मतलब हमें समझाया। शायद हमें इतना मालूम नहीं था, जो आपने बातें हमें और हमारे तमाम लाइव सुनने वाले बहन भाइयों पर ये जाहिर किया कि असल में फजर के वेले है क्या। वाकई सुबह का सितारा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, सुबह की पहली किरण खुदावंद यीशु मसीह, और हमारी जिंदगी की पहली किरण खुदावंद यीशु मसीह आए तो दिल अपनी तमाम मिन्नतें, कर्ज़े, दरख्वास्तें खुदावंद के सामने रखते हैं। दावत दूंगा भाई परवेज़ को कि वो आए और आज की मुलाकात खुदावंद के हज़ूर में रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जाहिद भाई, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। खुदावंद इस कलमे के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। अभी हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे। एल्मा एरिक, एरिक जॉन, सैमसन एरिक, इमरान मसीह, बशीरा बेबी,
सैमसन भट्ट, मोरस नूर, शहनाज जावेद और एक लेडी हैं जो दुबई में हैं। इनके लिए ख़ास तौर से दुआ करेंगे कि प्यारा खुदा इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे। और अभी हम बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करेंगे, साजिद मट्टू और नदीम। और ख़ास महरूम रूहों के लिए दुआ करेंगे, बशीर अनैत, मरियम यूसुफ, शहनाज, एग्नेस परवेज़, कि प्यारा खुदा इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे और अपने बरगज़ीदा की जमात में इनको शामिल करे। हम उन रिश्तों के लिए दुआ करेंगे कि जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए, मरकज़, लोकस, तारिक, सादी की फैमिली के लिए दुआ करेंगे कि प्यारा खुदा इन पर अपना रहम करे और इनको अच्छे रिश्ते दे। हम बेरोज़गार के लिए दुआ करेंगे, जोसेफ जावेद, कि खुदावंद इनको रोज़गार अता करे ताकि ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, मुश्ताक अनायत, नासिर मुश्ताक, तारिक गिल, तारिक सादिक, थॉमस वसीम थॉमस, परवेज जॉर्ज। हम चंद खास नाम हैं कि जिनके लिए दुआ करेंगे, दीना और नवीद पॉल, कि इनका इंटरव्यू है इलेक्शन के लिए, कि प्यारा खुदा इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे और इनके इंटरव्यू में खुदावंद इनको कामयाबी अता करे। और जॉसफिन के ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे। हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि प्यारा खुदा फजर के वक्त हम अपने दिन का आगाज़ करें और खुदावंद की बरकत मांगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा तमाम बीमारों को शिफा दे, ख़ास तौर से जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी में मुब्तला है, खुदा उनको तमाम को शिफा दे और खुदावंद के नाम को वो इज़्ज़त और जलाल दे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा तमाम बेऔलाद जोड़ों के लिए कि खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत से भरे ताकि वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे और खुदावंद की सताइश हो। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार अता करे ताकि वो रोज़गार पाएँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा फादर साहबान, सिस्टर साहबान, कार्डिनल साहबान, बिशप साहबान और तमाम मशनानी अंजील के लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि वो बेहतर और लायक तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जोश और खुशी के साथ खुदावंद की खिदमत को जारी और सारी रखें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। हम तमाम इन नामों को खुदावंद के हजूर में रखते हैं, खुदावंद से इल्तिजा और मिन्नत और फरियाद करते हैं, खुदावंद अपना रहम और करम की नज़र करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खास दुआ चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लायक हमें इस वक्त देख रहे हैं, इस दुआ में शामिल हैं कि आज खुदावंद खुदा जब उस बरकत को पाकर उसके साथ वफादार है। मैं खास दावत दूंगा आखिरी सेशन के लिए अपनी ग्रुप लीडर बाजी नायला फिलिप्स को और साथ ही साथ भाई नासिर मुश्ताक को कि वो आए आखिरी सेशन के लिए। साथ ही साथ हम प्रस्तिश का गीत गाएंगे, खुदावंद की खास बरकत चाहेंगे। अब तमाम अजीज बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अगर आप समझते हैं कि आपके जिस्म में कहीं भी तकलीफ है, दिल के वाल बंद हैं, या आपकी गुर्दों की तकलीफ है, यहाँ का ब्लड प्रेशर है, यहाँ के गुर्दे की पथरी है या कैंसर जैसा मर्ज है, तो ईमान के साथ अजब ने दाएं हाथ को वहाँ पर रखें।
रहमान है मेरे अजीजों, आप ज़रूर शहीद हो जाएंगे, आप ज़रूर शिफा पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा खुदा है। वो हमें अपने लहू से आँख और साफ कर देता है। ये आँखों को बंद करिए, अपने हाथों को खुदा की तरफ बढ़ाते हुए खुदा है, तू चंगियाई का खुदा है, और तेरे बेटे और बेटियां तेरी मजदूरी में सहमत हैं। आज इन पर अपने कर्म की निगाह से देखता हूँ।
आज के टॉपिक को अपने जहनों में लेकर आए। जो यहाँ मौजूद हैं या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आज के कलाम को अपने जहन में दोहराएं और आज के उन्वान को सोचें। फजर का वक्त, सहर का वक्त, और फटने का वक्त। जहनों में सोचें। अंधेरा, हर तरफ अंधेरा, गुप्त अंधेरा, गहरी तारीखी, रोशनी का कोई वजूद ना हो, नूर की कोई किरण ना हो। लेकिन जब फजर होती है, वो तारीखी को चीर देती है, वो गहरी तारीखी को चीर कर निकल आती है और अंधेरे पर काबिज आ जाती है। और रोशनी की किरणें हर तरफ रोशनियां बिखेर देती है। और यकीनन आज का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि आपने बाला का फजर है, जो कि हमारे लिए
خاندان میں آنے کی دعوت دے دے اپنے دل کی دہلیز پر اسے ویلکم کرے کیونکہ وہ تیار ہے آنے کے لیے اور ہمارے تمام تاریکی کو دور کرنے کے لیے مجبور ہے خدا جس سے خاص دعا کرتے ہیں خدا ہم پر رحم کر ہمیں عقل اور دانائی حکمت اور طاقت دے تاکہ ہم اپنی صبح کا آغاز تیرے نام سے کریں تیرے کلام سے کریں اور اپنی زندگیوں میں تیرے نام کو تیرے کلام کو اہمیت دیں نہ صرف تیرے کلام کو تخت نشینی کے لیے استعمال کریں بلکہ اسے اپنے دلوں کا تخت پر بٹھا لیں اسے اپنے دل کے تخت پر رکھ لیں اور اسے پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں چلا لیں تاکہ وہ ہماری روشنی بن کر ہماری زندگیوں میں ابھرے اور تمام جو تاریکی ہے اسے دور کر دے Jesus, بشیرا منتقی القیل نصیرا اشرفدی منتقی البشر اشرفدی منتقی البشر تمہارے ساتھ ہمارے درمیان تیرے روح کی بادل کی چمش ہمارے ساتھ موجود ہے تمہیں چھونا اور چھوتا جا رہا ہے تو ہمیں پاک کرتا ہے اور پاک کرتا جا رہا ہے تیرا لہو ہمیں دھو رہا ہے اور دھوتا جا رہا ہے خدا تو اپنا نور اور اڈھیل رہا ہے اور اڈھیلتا ہی جا رہا ہے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں تمام ناموں کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں خاص طور پر تیری بیٹی سمرا بٹ کے لیے جو خاص طور سے ہمیں 2 ہفتوں سے خدا میسج کر رہی ہے اس کے خاندان کے لیے خاص دعا کریں گے خدا تو دلوں مردوں کو جھانچنے والا باپ ہے ہمیں نہیں پتا کہ تیری بیٹی کی مشکلات میں لیکن آج یسوع کے نام سے ساری مشکلات جاتی رہے یسوع کے نام سے ساری مشکلات جاتی رہے خدا پورے خاندان میں اٹھے رہتے خدا جیسس خاص طور پر بول بھائی اور خدا ان کے ساتھ جو لیکچر کے لیے جا رہی ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں کہ خدا ساری رکاوٹیں دور کر دے خدا جو انٹرویو لینے والے خدا ان کے ذہن کو کھول دینا خدا ان کے ذہن کو سکھا دینا تاکہ خدا تیرا بیٹا اور تیری بیٹی سلیکٹ ہو جائے خدا اور تیرے نام کو جلا دے مسیح قوم کے معمار بن کر خدا تیرے نام کو روشن کرے اس کے ساتھ تمام ناموں پہ خدا جو ہم نے خاص طور پر پڑھے ایک دفعہ پھر تیری پاک حضوری میں رکھتے ہیں خدا ان سب ناموں کی جو درخواستیں منتیں التجا ہیں خدا ان سب کو بہت کی مانت قبول کر خدا ان کے جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو تو ہمیں دیتا ہے خدا ہم نے یہ جو بھی دعائیں التجا مانگی ہیں سے سب مانگی ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین عزیزوں ہم وہی مل کر دعا کریں گے جو ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرضات کو بخشتے ہیں تو ہماری قرض بھی بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا آمین سلام اے مریم منتظر سلام تیرے ساتھ ہے تو تمہیں مبارک ہے مبارک تیرے ایک کا یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم کو لگانے کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے بعد آمین جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو جیسے کہ خدا میں تھا آمین یسوع
बेटे और पवित्र के नाम से आमीन। God bless you. God bless you.